Good evening, students. Welcome to our YouTube channel HKH Classes. In today's video, we shall solve all the questions of exercise 2.2 from the chapter 2 Introduction to Linear Polynomials. So let's get started. So बच्चों पहला क्वेश्चन है find the value of linear polynomial 5x minus 3 when x is equal to 0. तो 5x minus 3 when x is equal to 0 क्या बनेगा बेटा 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3. नेक्स्ट है 5x माइनस 3 व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1. तो इसकी वैल्यू डालेंगे 5 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 8. when x is equal to 2 इसकी वैल्यू बन जाएगी बच्चों 5 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7. ये आपके आंसर हैं 7 माइनस 8 और माइनस 3. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 व्हेन s इज इक्वल टू 0. 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 व्हेन s इज इक्वल टू 0. सो ये बच्चों क्या बन जाएगा इज इक्वल टू 7 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6. ठीक है, अब दूसरा करते हैं व्हेन s इज इक्वल टू माइनस 3. इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 इंटू 9 प्लस 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 63 प्लस 18 इज इक्वल टू 81. दिस इज द आंसर. लास्ट देख लो. व्हेन s इज इक्वल टू 4 तो 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इज इक्वल टू 7 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 इंटू 16 माइनस 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 112 माइनस 10 इज इक्वल टू 102 is the answer. Let's go to the next question. The present age of Salil's mother is 3 times Salil's present age. After 5 years, their ages will add up to 70 years. Find their present ages. So इसमें आप लिख लो सलिल और ये हो गया सलिल की मदर. ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो प्रेजेंट एज और यहाँ पे लिख लो 5 years hence. So present age of Salil's mother is 3 times Salil's present age. तो let Salil's present age be x. So उनकी मदर की एज हो गई 3x. 5 years के बाद सलील की एज हो जाएगी x प्लस 5 और उनकी मदर की एज हो जाएगी 3x प्लस 5. अब इक्वेशन क्या दिए हुए कि आफ्टर 5 years their ages will add up to 70 years. Implies that x plus 5 plus 3x plus 5 is equal to 70. Implies that 4x plus 10 is equal to 70. Implies that 4x is equal to 60. Implies that x is equal to 15. तो उनकी प्रेजेंट एज सलील की कितनी हो जाएगी 15. Salil's mother 15 into 3 45. 5 years hence it will be 20 and this will become 50 and 20 plus 50 is 70. So find the present ages. Present age is 15 and 45. This is the answer. Let's go to the next question. The difference between two positive integers is 63. The ratio of the two integers is 2:5. So let the first integer be x
and the second integer be y. Y minus x is equal to 63. Y is equal to x plus 63. X upon y is equal to 2 upon 5, implies that 5x is equal to 2 times y is equal to 2 into x plus 63. Substituting from above implies that 5x is equal to 2x plus 126. Implies that 3x is equal to 126, implies that x is equal to 126 upon 3 is equal to 42, implies that y is equal to x plus 63 is equal to 42 plus 63 is equal to 105. So the numbers are x comma y are 42 comma 105. Answer 42 upon 105 is equal to 7 into 6 upon 7 into 15 is equal to 2 into 3 upon 3 into 5 is equal to 2 upon 5. Hence proved. ठीक है, let's go to the next question. Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. So एक आपका हो गया 2 rupee, एक आपका हो गया 5 rupee. ठीक है, has 3 times as many 2 rupees as she has 5 rupees. So 5 rupees का एज्यूम कर लो x, तो 2 rupee का हो गया 3 times x. ठीक है, अब जो 2 rupee की कॉइन्स की वैल्यू है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 3x इंटू 2 प्लस x इंटू 5 इज इक्वल टू 88, implies that 6x plus 5x is equal to 88, implies that 11x is equal to 88, implies that x is equal to 8, implies that 3x is equal to 24. सो 5 रुपीज़ के हो गए हमारे पास x मतलब 8 कॉइन्स, और 2 रुपीज़ के हो गए हमारे पास 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24 कॉइन्स. 8 इंटू 5 इसकी वैल्यू बन गई 40 और 24 इंटू 2 की वैल्यू बन गई 48. दोनों का सम बन गया 88. ठीक है, सो आंसर क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, 8 कॉइन्स ऑफ ₹5, 24 coins of ₹2. This is the answer. Okay, let's go to the next question. A farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ये आपका एक फेंस है, ठीक है, ये एक फेंस है आपका. ठीक है, इसकी जो लेंथ है दैट इज 300 फीट. ठीक है, अब वो इसको 2 पीसेस में ब्रेक करता है, और जो 2 पीसेस हैं वो इस तरह से हैं कि जो छोटा पीस है, ठीक है, समझ लो जो छोटा पीस है वो है x, और जो बड़ा पीस है, लंबा पीस है, दैट इज़ 4x. ठीक है, लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस. ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, x प्लस 4x इज इक्वल टू 300, 5x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 300 अपॉन 5 इज इक्वल टू 60, 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 60 इज इक्वल टू 240. ठीक है, सो हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, सो 60 फीट एंड 240 फीट. बहुत सिंपल सवाल है, मतलब डजंट क्वालिफाई टू बी ए 9th क्लास क्वेश्चन. इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप 8th क्लास में कर चुके हो. ओके,
चलो, let's come to the last question of this exercise. If the length of a rectangle is 3 more than twice its width and the perimeter is 24, what are the dimensions of the rectangle? Rectangle बना लेते हैं. जो लेंथ है विड्थ की फॉर्म में दी हुई है, तो पहले आप विड्थ को एज्यूम कर लो x. लेंथ कितनी दी हुई है? 3 मोर देन ट्वाइस इज विड्थ, 2x प्लस 3. ठीक है, तो आपकी विड्थ इज इक्वल टू x, लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 3. अब आपका पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स x this is equal to 24. 3x plus 3 is equal to 24 upon 2 is equal to 12. 3 times x plus 1 is equal to 12. X plus 1 is equal to 4. X is equal to 3. और 2x plus 3 is equal to 9. और आपका 2 टाइम्स 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 24. सो आपके जो डायमेंशंस हैं, व्हाट आर द डायमेंशंस? x इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 3 9. दीज आर द लेंथ एंड द ब्रेथ. ठीक है, सो हियर so with this we come to the end of this particular exercise. Thanks for your time. Do a lot of hard work and stay focused. Thank you.